Morning to all. Welcome to your TSN English class. Today we'll be starting your chapter 2, part 3rd from book Flamingo. So students, previously or in previous paragraph we have read that Annie Jung, the author of the chapter, she explained some stories of rag pickers or those children who were like shoeless and they face their life, or they are facing this challenging situation of their life because they are poor. So here my acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri, a place of periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib family is among them. Simapuri was then a wilderness. It's still, but it is no longer empty. In structures of mud with running water, in structures of mud with roofs of tin, terrapolin, devoid of sewage, drainage, or running water, lived 10,000 rag pickers. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. So, here in this paragraph, author Annie Jung, my acquaintance with the barefoot rag pickers lead me to Simapuri. So she is saying that because उसका जो साथ है इन बच्चों के साथ जो रैग पिकर्स थे एंड ऑल दोज चिल्ड्रन, सो हर एक्वेंटिस उसको कहाँ लेकर गया, दिस टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. So this is a place which is like periphery here means outer edge of a particular area. So this is like some not the part of Delhi city. So it is like symbolizes another thing, metaphorically here means symbolizes the another thing. Those who lived here are squatters who came from Bangladesh, and those people who lived here in Simapuri, they are like squatter. What squatter here, students? Someone who lives in a building without permission. So those who are living like जो हम कहते हैं बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन की किसी बिल्डिंग्स में रहना. सो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक कब्जे की ज़मीन पे रहना या इलीगली रहना. सो हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. सो दीज पीपल ये कब से रह रहे हैं, 1971 में बांग्लादेश से आए हुए लोग. साहिब फैमिली इज़ अमंग देम, और जो वो बच्चा है साहिब आलम उसकी फैमिली भी एक उनमें से एक है. सीमापुरी देन was then a wilderness. So Simapuri was what? Wilderness. Here means the wilderness is an uncultivated area. It is still but no longer empty. Yes, it is an uncultivated area, but it is not an empty area. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin. और कुछ structures मतलब जो कच्चे structures of mud here means जो कच्चे मकान बने हुए हैं उनकी रूफ्स जो हैं वो टिन और टेरापोलिन मटेरियल की है. डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स, और उनके आसपास में सीवेज का पानी, ड्रेनेज वाटर आसपास में है. और इस एरिया सीमापुरी में हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी रैग पिकर्स आर देयर? 10,000. They have lived here for more than 30 years without an identity. और ये लोग यहाँ पे 30 साल से भी ज़्यादा से रह रहे हैं बिना किसी पहचान के या बिना किसी पहचान पत्र के. विदाउट परमिट्स बट विथ
राशन कार्ड्स। इन लोगों के पास कोई परमिट नहीं है बांग्लादेश से यहाँ आके रहने का, बट इनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन। इसकी वजह से उनका नेम जो है वोटर लिस्ट में आता है और इसकी वजह से वो लोग अपने लिए ग्रेन्स खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। एंड दो जो लोग ऐसी पॉवर्टी वाली सिचुएशन में रहते हैं उनके लिए फूड जो है वो अपनी आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without aching stomach, we would rather live here than in the fields gave us no grain। तो वो कह रहा है अगर दिन के अंत में हमें हमारी फैमिलीज़ को फीड करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, और अगर हम इस एरिया सीमापुरी में यहाँ रह रहे हैं जहाँ पर हम अपने पेट को बिना दुखाए या पेट को खाना बिना खाए अगर हम फील्ड्स में रहते जहाँ पे हमारे पास खेत तो होता बट खाना नहीं होता, और हमारे पास यहाँ सीमापुरी में खाना है पर खेत नहीं है, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, खाना करेंगे। तो फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर थिंग्स, सो वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। सो ऐसे फील्ड्स में रहना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे हमारे लिए खाने को कुछ नहीं है। ऐसा कौन कहता है? सम ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड साड़ी, ऐसी औरतें जो फटी पुरानी साड़ियों में थी। व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, और जब उसने उनसे पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आप अपनी फील्ड्स और ग्रीन फील्ड्स को छोड़ के यहाँ क्यों रह रहे हो। तो उन औरतों ने क्या जवाब दिया कि क्यों हम ऐसे फील्ड में रहें जहाँ हमारे पास फूड अवेलेबिलिटी नहीं है, और यहाँ सीमापुरी में रहेंगे तो हमारे पास फूड तो अवेलेबल होगा, एटलीस्ट वी हैव हैड आवर 2 times मील्स। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम, और जहाँ पे उन्हें खाना मिलता है वो अपने टेंट्स को वहीं पर लगा लेते हैं एंड मेक देयर लाइक ट्रांजिट होम और टेम्परेरी होम्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जो लोग इन टेंट्स में रहते हैं वो लोग अपनी आजीविका के पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दैट एरिया ऑफ दिल्ली सीमापुरी यू हैव टू योर work is based on that rag picking. Through the years it has acquired the proportions of fine art, और कुछ सालों बाद वो रैग पिकिंग में इतने अच्छे हो जाते हैं। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, और उन लोगों के लिए गार्बेज क्या होता है? गोल्ड। इज़ देयर डेली ब्रेड, और ये उनकी रोज़ का 2 time मील कमाने का ज़रिया है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इज़ इवन मोर। भले ही क्या हुआ कि उनके घर की छत जो है वो बारिश के दिनों में टपकती है, बट छत होना ही बहुत बड़ी बात है। सो स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up, when you can find silver coin in a heap of garbage. You don't stop scrounging, for there's a hope of finding more. It seems that for children, garbage has meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For elder, it is a mean of survival. So here in this paragraph, like it's I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. तो साहिब मेंशन करता है एनीस को दैट उसको कभी कभी हीप ऑफ गार्बेज में क्या मिलता है? 10 रुपी नोट, और ऐसा कहते हुए वो उसकी आंखों में जो है एक अलग ही चमक होती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग। अगर आपको किसी ऐसी हीप ऑफ गार्बेज में 10 रुपी नोट या कुछ ऐसा मिलता है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते और ज़्यादा ढूंढने से। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होप होती है दैट दे कैन फाइंड सम मोर money in that heap of garbage. It seems that for children garbage has meaning different from what it mean to their parents. और इन बच्चों के लिए garbage जो है वो कुछ अलग ही मतलब रखता है as compared to their parents. For children it is wrapped in wonder. For the elder it means of survival. बच्चों के लिए both are rag pickers, but children's के लिए क्या है ये? It is like wrapped in wonder. And for elders ये survival का एक तरीका है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ।
One winter morning, I see Sahib standing by the fence gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस आई गो. सो एक दिन जब सर्दियों का दिन होता है, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. और जो एनीज हैं वो साहिब को देखती हैं कि वो उसके नेबरहुड में जो एक क्लब है वहाँ की फेंसिंग के पास में खड़ा है. वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन, वो दो यंग लोगों को देख रहा है जिन्होंने वाइट क्लोथ्स पहने हुए हैं कि वो लोग क्या खेल रहे हैं. दे वर प्लेइंग टेनिस. आई लाइक द गेम ही हम्स, वो अपने आप में ही बुदबुदाता है कि मुझे ये गेम पसंद है. कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बहुत ही ध्यान से फेंस के पीछे खड़ा होकर उस गेम को देखता है. मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 16. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स. द गेटकीपर लेट मी यूज द स्विंग. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. सो हियर व्हाट हैपन्स, साहिब अपने आप से कहता है कि मैं भी अंदर जाना चाहता हूँ. व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, और ये भी कहता है जब कोई आसपास नहीं होगा तब मैं अंदर जाऊँगा. द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, तो वो गेट कीपर से पूछता है कि क्या मैं ये स्विंग इस्तेमाल कर लूँ. साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स. साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए हैं, बट उसके जो शूज़ हैं और उसके जो कपड़े हैं वो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं. उसके शर्ट्स और शॉर्ट जो हैं वो डिस्कलर्ड हो गए हैं, दैट मीन्स फेडेड हैं. समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और उसने क्या कहा, ये शूज़ किसी ने मुझे दिए थे. द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम. तो वो ये कह रहा है कि सच्चाई ये है कि इन शूज़ में से किसी एक शूज़ में होल है, एंड दीज आर लाइक डिस्कार्डेड शूज़, कि कोई इसे पहनना नहीं चाहता था. एंड परहैप्स ही रिफ्यूज़ टू वियर दोज, और जो भी रिच बॉय था उसने इन शूज़ को पहनने से रिफ्यूज़ किया था, बिकॉज इन वन ऑफ देम देयर इज़ अ होल. डज नॉट बॉदर हिम, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. और इन सबसे डज नॉट बॉदर हिम, साहिब आलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, जो कि पूरा दिन बेयरफुट या नंगे पाँव चलता है, उसके लिए शूज़ चाहे जिनमें होल ही क्यों ना हो, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर हिम. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो देख रहा था, ये गेम उसकी पहुँच से बाहर था. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू मिल्क बूथ. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर. और आज के दिन साहिब जो है वो कहाँ जा रहा था, मिल्क बूथ की तरफ. उसके हाथ में एक स्टील का बड़ा सा कंटेनर था. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग द डिस्टेंस. उसने जो ऑथर हैं उनको ये कहा कि मैं उस टी स्टॉल पे वर्क करता हूँ, उधर पॉइंट आउट करते हुए. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. मुझे वहाँ 800 रुपये मिलते हैं, और वो सभी मेरे पर डे के मील्स का खर्चा उठाते हैं. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. सो ऑथर ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब अच्छी लगी. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. उसके फेस को जब उसने देखा तो उसने कहा कि उसका लुक उसे कैसा लगा, केयर फ्री. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. और जो ये स्टील बैग है, ये जो है प्लास्टिक बैग से हैवी है, जो उसने अपने शोल्डर पे कैरी कर रखा था. बट डिफरेंस ये है कि प्लास्टिक बैग उसका खुद का हुआ करता था, स्टील वाला बैग उसके ओनर का है. द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. जब वो रैक पिकिंग करता था तो साहिब वॉज लाइक हिज ओन मास्टर, वो खुद के लिए खुद वर्क करता था. बट नाउ दैट वॉज नो लॉन्गर, अब वो खुद के लिए खुद वर्क नहीं करता है. ही इज़ वर्किंग फॉर सम अदर
man or the owner of the tea shop. Thank you, students. Now the story, first phase of this chapter, that is like Lost Spring, which is, and the first story is based, or the theme of the story is like poverty. So this ends here, and in our next video, that is the third video, in third video we'll start with this, I want to drive a car. Thank you everyone. Stay safe.